So good morning students. So today we are going to discuss a very important part of the Python, or not only for the Python, it is an important part in every kind of programming languages, which is known as functions. Fine. So today we are going to discuss the functions which are used in the Python. So first of all, I'll just brief you the basic part or the definition of the function. So what is a function? Function is a block of code which only runs when it is called. Fine. So it is a block of code. It is a block of statements. We can say that. That only runs when it is called, and there is no need to tell the function what it has to do. Fine. Like for an example, when we take our vehicle, a car, or the bike, or the two-wheeler to the service center, so there is no need to tell the workers over there, the technicians over there, that what kind of job they have to perform, because they know how to repair the car, or how, or what are the things we have to take care during the service of the car or the two wheelers. Fine. So that same is the example for the function also. So whenever whenever there is a requirement of the function, we call that function, and it itself it is a block of a statement. So itself it performs a task. Fine. So how that happens, how it performs. So we pass the data, which is also known as arguments, and in few of the books, in many of the books, this arguments is also known as parameters. Fine. So parameters, when we talk from the function perspective, it is known as the parameters, and what kind of the value the function is returning is known as the arguments from the function perspective. So that is the difference between the argument and the parameter. तो जो भी मैं वैल्यू पास करता हूँ फंक्शन के अंदर, दैट इज नोन एज द पैरामीटर, और जो फंक्शन से मुझे वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है, बिकॉज वेन एवर वी कॉल द फंक्शन, इट डेफिनेटली इट विल रिटर्न सम काइंड ऑफ वैल्यू. तो जो भी वो वैल्यू रिटर्न करेगा, that is known as the argument. So in interview, or in any kind of interview, when you are facing, might possible that they will ask you what is the difference between the arguments and the parameters. So you must know, you must have a knowledge of the difference between the parameters and the arguments. Fine. So what we do is we pass the data to the function, which is also known as the arguments and the parameters. So in return, what the function does, function can return data as a result. फाइन. तो इसके अंदर क्या होता है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसको हम क्रिएट करते हैं, और जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है हम उसको कॉल करते हैं. जैसे हम उसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, वो अपनी कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा. अब फंक्शन के अंदर होता क्या है, फंक्शन के अंदर बेसिकली डेटा होता है जिसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं और पैरामीटर्स भी बोलते हैं, और इस तरीके से हम पैरामीटर्स को पास करते हैं, डेटा को पास करते हैं, और फिर उसको हम जो है वो उसको जब भी उसकी ज़रूरत होती है हमें प्रोग्राम के अंदर, हम उसको कॉल करते हैं, एंड आफ्टर दैट इट रिटर्न्स द वैल्यू. ठीक है, इट रिटर्न्स सम काइंड ऑफ डेटा. फाइन. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन. नाउ we'll start with the function. So first of all we'll see how we have to write the function in the Python. So we'll see the syntax. तो syntax इसका होता है def से. तो जब भी मैं def लिखूंगा तो मुझे फंक्शन का ये बेसिकली सिंटैक्स है. तो फंक्शन के लिए मैं हमेशा def लिखता हूँ. तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन f, जिसका मैंने नाम दिया f, और बट ऑब्वियस है, आप लोगों को पता ही है, जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो उसको हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से. कोई भी लैंग्वेज हो, वेदर यू आर यूजिंग सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग, वेन एवर यू आर यूजिंग द फंक्शन वी हैव टू यूज द स्मॉल ब्रैकेट. फाइन. तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया, और कोलन लगाना ही तो इंडेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और मैं लेट सपोज लिखता हूँ यहाँ पे एक मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन. ठीक है.
तो इस फंक्शन के अंदर मैं कोई भी डेटा पास नहीं कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम फंक्शन के अंदर डेटा पास करना हो, फंक्शन एम्प्टी भी रह सकता है, ठीक है। ना तो मैं यहाँ पे अभी कॉलिंग कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा एक मैंने फंक्शन लिखा है, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि उसकी जो डेफिनेशन में मैं सिर्फ एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द पाइथन, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं और लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ आउटपुट। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने फंक्शन को तो बना दिया लेकिन मैंने फंक्शन की कॉलिंग नहीं की। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम फंक्शन को रन करेंगे तो वी हैव टू कॉल द फंक्शन। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल सा है, मुझे क्या करना है, फंक्शन कॉलिंग के लिए मुझे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एफ स्मॉल ब्रैकेट, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एफ नाम का फंक्शन क्रिएट किया था। तो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो नाउ आई हैव कॉल्ड द फंक्शन। जैसे मैंने फंक्शन कॉल किया, मैंने इसके अंदर कोई डेटा पास नहीं किया था। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, three things we have to do with the function. First, we have to create the function. Then we have to pass the data, which is also known as argument, and the parameters inside the function. That is optional. In this case, I am not passing any kind of parameters to the function. Then after that, we have to define the function. ठीक है, मैं यहाँ पे एक print कर रहा हूँ, एक statement में print कर रहा हूँ welcome to the world of Python. And after that, we have to call the function. ठीक है, so whenever we call the function, it will return the value. तो जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया तो जो भी इसके अंदर वैल्यू थी उसने उसको रिटर्न कर दिया। फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन। नाउ वी विल सी द फंक्शन विद द आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को देखेंगे और स्ट्रिंग के बाद हम एक लिस्ट को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रिंग के साथ दिखाता हूँ कि स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया एफ, और इसके अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास करा दिया एफ नेम। एफ नेम इज नथिंग बट द फर्स्ट नेम। यहाँ पे मैंने कोलन कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है, वैसे सी लैंग्वेज के अंदर मेरे को प्रैक्टिस सी लैंग्वेज की इसलिए कर्ली ब्रेसेस ओपन किया था मैंने, लेकिन पाइथन के अंदर दिस वी हैव टू वी डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सिंटैक्स इसका बिल्कुल सिंपल होता है पाइथन का, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द पाइथन, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है पाइथन, इसी वजह से। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, उसके बाद मैंने लिख दिया एफ नेम, फाइन, और उसके बाद मैंने प्लस लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया शर्मा, फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि हमने करा क्या है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है एफ नाम का, उसके अंदर मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए हैं एफ नेम। एफ नेम इज नथिंग बट द फर्स्ट नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली जो है फर्स्ट नेम जो है वो पास किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ एफ नेम प्लस शर्मा। तो हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम आ जाएगा, वो कनकटिनेट हो जाएगा शर्मा के साथ। तो जो भी मैं नाम यहाँ पे पास करूँगा वो शर्मा के साथ मुझे दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा, अब देखिए यहाँ से मैंने एंटर प्रेस किया तो ये इंडेंटेशन दिखा रहा है यहाँ पे। मुझे अब इंडेंटेशन नहीं चाहिए, मतलब ये है कि मुझे इसका इफेक्ट नहीं चाहिए अब फंक्शन का। तो मैं अब नया स्टेटमेंट, मतलब मेरे को अब क्या करना, रिटर्न करनी है वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एफ नाउ, मैंने सबसे पहले वैल्यू पास करी अमित, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन एक अमित वैल्यू रिटर्न करेगा और वो किसके साथ कनकटिनेट होके आएगी, शर्मा के साथ। सो द आउटपुट विल बी अमित शर्मा। लेट्स सी के आता है कि नहीं। यस, वी कैन सी दैट इट इज शोइंग अमित शर्मा, ठीक है। अगर आपको इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस चाहिए तो यहाँ पे मेरे को डबल कोट लिखना पड़ेगा। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। इट इज शोइंग एन एरर, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे गैप लिखना है तो गैप लिखने के लिए मुझे यहाँ भी प्लस लगाना होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एंड
नाउ हियर वी कैन सी दैट इट इज शोइंग एट अमित शर्मा, और यहाँ पे गैप भी आ रहा है, तो इसको बिल्कुल सिंपल सा कर देता हूँ मैं। नाउ लेट्स सी व्हाट विल यस। तो मेरे को यहाँ पे क्या सीधे से गैप देना है, और यहाँ पे जो भी वो कनकैटिनेट होगा वो इसके बाद से कनकैटिनेट होगा। ये स्ट्रिंग यहाँ से पूरी लेगी, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस भी दिया है मैंने, तो वो स्पेस भी लेगी और उसके बाद शर्मा प्रिंट करेगी। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर मेरे को इसका फ़ायदा ये है कि मेरे को बार बार ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सो दैट इज़ द बेनिफिट, दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसमें सीधे से वैल्यूज़ पास करूँगा और मेरे को उसकी वैल्यूज़ का आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब अभिनव। ठीक है, तो यहाँ पे अभिनव आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ एंड कृतिका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमित शर्मा आ गया, अभिनव शर्मा आ गया, कृतिका शर्मा आ गया। तो इन दिस वे वी कैन पास द वैल्यू एज मैनी वैल्यू वी कैन। और सिर्फ मुझे एक बार डिफाइन करना होगा उसको, एक बार मैंने उसको डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैं जितनी भी वैल्यूज रिटर्न करूंगा बार बार वो क्या होगा, जैसे ही मैंने ये फंक्शन को कॉल किया और रिटर्न करी वैल्यू, तो ये पहले उसकी डेफिनेशन पे जाएगा, और डेफिनेशन में लिखा है कि मैं फर्स्ट नेम कंकैटिनेट कर दूंगा, और कंकैटिनेट होने के बाद वो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया था। अब मैं चाहूँ तो फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो दो आर्ग्यूमेंट किस तरीके से पास होंगे मैं बताऊंगा आपको अभी। तो लेट सपोज फिर से मैं डेफ एफ लिखता हूँ, और अब मैं फर्स्ट नेम के साथ साथ लास्ट नेम भी कर देता हूँ इसमें। तो इस तरीके से मेरे को जो होते हैं पैरामीटर्स जो होते हैं वो पास किए जाते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको कॉमा से मुझे सेपरेट करना होगा, ये हम जानते हैं सी लैंग्वेज में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे कोलन नहीं लगाया इसलिए इंडेंटेशन नहीं हुआ, तो मुझे यहाँ पे कोलन लगाना होगा, ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एंड एफ नेम, देन प्लस, देन अगेन डबल कोट्स प्लस लास्ट नेम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रिंट के अंदर मैं पहला आर्ग्यूमेंट और सेकंड पैरामीटर्स को पास कर रहा हूँ। मेरी डेफिनेशन पूरी हो चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को फंक्शन के अंदर वैल्यू को पास करना है। तो लेट सपोज के मैं यहाँ पे अब करता हूँ राम, तो मेरा फर्स्ट नेम हो गया, और उसके बाद मैं सेकंड नेम करता हूँ कुमार। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हियर वी कैन सी दैट आउटपुट इज राम कुमार। ठीक है, सो हियर वी कैन सी दैट द नाउ द आउटपुट इज राम कुमार। इसी तरीके से मैं चाहे कितनी भी वैल्यूज इसके अंदर पास कर लूँ, मेरे को आराम से वो आ जाएगा। सो लॉर्ड लेट सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ रोविका, एंड जो सेकंड पैरामीटर मैं पास करता हूँ यहाँ पे जोशी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राम कुमार एंड रोविका जोशी यहाँ पे आ गया है। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए, जिस तरीके से आपने पैरामीटर्स लिखे हैं, उसी तरीके से इनकी वैल्यू भी आपको पास करनी होगी। तो बार बार मुझे इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। whenever I pass the value it automatically show me the result। ठीक है, अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी पैरामीटर्स आपने यहाँ पे पास किए हैं उतनी ही वैल्यूज़ आपको रिटर्न करानी है। अगर आप उसने कम या ज़्यादा करते हैं तो वो आपको एरर शो करेगा। लेट्स सी के मैंने देखिए यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास किए हैं, लेकिन मैं सेकंड नंबर के फंक्शन के अंदर, चलिए इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास किए हैं लेकिन इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही वैल्यू को पास कर रहा हूँ। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो इट विल बी शो मी एन एरर मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में जो है वो मिसिंग हो रहा है। मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स दो आर्ग्यूमेंट दिए थे, लेकिन यहाँ पे एक ही जो डेटा है उसको मैंने पास किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितने ही आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ पास कर रहे हैं उतने ही वैल्यूज़ आपको यहाँ भी पास करने पड़ेंगे। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, लेट सपोज अभी मैंने एक आर्ग्यूमेंट देखा, मैंने दो आर्ग्यूमेंट देखे। अब मान लीजिए मेरे को पता ही नहीं कि मुझे कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, तो वो उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि हमें एस्ट्रिक साइन को यूज़ करना पड़ेगा। तो अब वो किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने फिर से एक फंक्शन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया किड्स। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ किड्स नाम का, जिसको मैंने एस्ट्रिक से डिनोट किया है। तो जो भी मैं आर्ग्यूमेंट लिखता हूँ उसके आगे अगर मैं एस्ट्रिक लिख दूंगा तो मुझे नहीं पता कि अब कितने आर्ग्यूमेंट मुझे इसके अंदर पास करने हैं, ठीक है। तो इन दिस वे द फंक्शन विल रिसीव अ टपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो टपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अब मेरे को देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले तो मैं इसको कोलन कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है। तो द youngest child is plus kids 2, फाइन। अभी मैं आपको इस स्टेटमेंट का मतलब बताऊंगा कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ f और यहाँ पे मैं और वैल्यूज पास करता हूँ, राम, श्याम, सीता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मेरे को ये पता नहीं था कि कितने आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, ठीक है। अभी तक तो मैं यहाँ पे 2 ले रहा था पैरामीटर्स, 2 ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहा था। यहाँ मैंने एक ही पैरामीटर लिया था, एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करा है कि एक ही पैरामीटर लिया है लेकिन उसको एस्ट्रिक साइन से लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं कितने भी चाहूँ उतने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि मैंने लेट सपोज सबसे पहले लेट सपोज, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर आपको देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो इट इज शोइंग दैट इट इज ओनली concatenate द स्ट्रिंग नॉट द टपल, फाइन, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मैं फिर से यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो हियर वी कैन सी दैट द यंगेस्ट चाइल्ड इज सीता। तो बेसिकली क्या है, ये टपल है और टपल कंकटेनेट नहीं होता है, तो मेरे को उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिस्ट में जब मैं कन्वर्ट कर दूंगा उसको, तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। सो इट इज शोइंग एन इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर 1 पास करूंगा तो यंगेस्ट चाइल्ड इज श्याम। तो शाम यहाँ पे यंगेस्ट चाइल्ड है, तो बेसिकली ये इंडेक्सिंग करेगा 0, 1 एंड 2 पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स के इट विल कंसीडर एज अ टपल। अब मेरे को किड फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा किड है उसको मुझे यंगेस्ट चाइल्ड बताना है। तो ये राम जो है वो 0 इंडेक्सिंग पे है, श्याम 1 इंडेक्सिंग पे है, सीता 3rd इंडेक्सिंग पे है। तो जो जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे पास करूंगा, मैं मान लीजिए यहाँ पे 0 पास करता हूँ, तो द यंगेस्ट चाइल्ड विल बिकम नाउ राम, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कौन सा यंगेस्ट चाइल्ड होने वाला है, फाइन। इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, इसके अलावा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी होता है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यू कैन ऑल्सो सेंड आर्ग्यूमेंट विद द की इक्वल्स टू वैल्यू सिंटेक्स, ठीक है। वो किस तरीके से होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने डेफ लिखा एफ और यहाँ पे मैंने लिखा चाइल्ड 1, सॉरी चाइल्ड लेट्स सपोज 3, देन चाइल्ड 1, देन चाइल्ड 2, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स पास कर दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट द youngest child is plus child 3, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ f
और इसमें जो मैं वैल्यू पास करा रहा हूँ, जो आर्ग्यूमेंट्स पास करा रहा हूँ वो ये है CH1 इक्वल्स टू राम, CH2 इक्वल्स टू श्याम, CH3 इक्वल्स टू सीता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीन आर्ग्यूमेंट्स, तीन पैरामीटर्स दिए हैं, और तीन पैरामीटर्स लेने के बाद मैं बता रहा हूँ कि जो यंगेस्ट चाइल्ड होगा वो चाइल्ड 3 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर। मैं चाहे पहले CH3 ले लूँ, CH1 ले लूँ या CH2 ले लूँ, मैं जो चाहे वो ले सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, द यंगेस्ट चाइल्ड इज CH3। तो मैंने यहाँ पे जो प्रिंट का स्टेटमेंट लिया उसमें ये लिखा है कि जो CH3 होगा वो मेरा यंगेस्ट चाइल्ड होगा। तो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो ये दिखा रहा है यंगेस्ट चाइल्ड इज सीता। तो नो मैटर्स के आप किस ऑर्डर में ले रहे हैं, अगर जैसे ही आप यहाँ पे की वैल्यू, ये कहलाता है की वैल्यू सिंटैक्स। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे, ये मेरी की है और ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी की है, ये मेरी वैल्यू है, तो मैंने पहले इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे CH3 लिख रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे CH2 लिखता हूँ, तो ये मुझे क्या बताएगा, यंगेस्ट चाइल्ड क्या होगा, शाम होगा। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ तो यंगेस्ट चाइल्ड इज श्याम। तो बेसिकली वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिक्शनरी, जिसमें की वैल्यू कंसेप्ट होता है। तो हम की वैल्यू बाय यूजिंग द टपल ऑल्सो वी कैन डू इट, बाय यूजिंग द डिक्शनरी ऑल्सो वी कैन यूज इट। ठीक है, तो बेसिकली ये टपल और डिक्शनरी का यूज है फंक्शन में, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी होता है। आर्बिट्री कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इज इफ यू डू नॉट नो हाउ मेनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दैट विल बी पास इनटू द फंक्शन, वी एड 2 एस्टेरिक साइन। ठीक है, अब मुझे पता ही नहीं है कितने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मेरे को देने हैं, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं डबल एस्टेरिक यूज़ करूँगा। कितनी कीज़ मुझे पास करनी मुझे पता नहीं है, तो मैं उसके केस में डबल एस्टेरिक पास करूँगा। तो किस तरीके से होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो फिर से हम यहाँ पे एक फंक्शन एफ ही लेते हैं, और इधर मैं डबल एस्टेरिक लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ किड्स। ठीक है, दैट मीन्स जैसे मैं डबल एस्टेरिक यूज़ कर रहा हूँ कि मैं यहाँ, इसका मतलब सीधा सा यही हो गया कि मैं डिक्शनरी का कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ। मैं सिंपली इसके अंदर किसका यूज़ करने वाला हूँ, की और वैल्यू का कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हिज लास्ट नेम इज, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्लस, और यहाँ पे मैंने लिखा किड, और यहाँ पे मैंने लिखा एल नेम। ठीक है, तो इस बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो लास्ट नेम है उसको मैंने किड से कर दिया। किड जो है वो मेरा की है, और अब इस की को मैं जो है वैल्यू के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो वो किस तरीके से की जाएगी वो मैं बता देता हूँ आपको। सो एफ इक्वल्स टू एफ, और इसके अंदर अब मैं जो है आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा। एफ नेम इक्वल्स टू राम या रमन कर देते हैं, और लास्ट नेम मैं कर देता हूँ रमन गुप्ता। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, जो लास्ट नेम है वो बताना है इसके अंदर। तो मैंने एल एम का जो है कीवर्ड उसके साथ मैंने वैल्यू अटैच कर दी है। तो ये बेसिकली मुझे क्या बता देगा, इसका जो लास्ट नेम है वो बता देगा। इट इज शोइंग एरर। ओके, किड, मैंने यहाँ पे किड्स लिया है तो यहाँ पे किड्स आना चाहिए। किड्स मेरी जो वैल्यू है उसका नाम किड्स है, तो इस लास्ट नेम इज गुप्ता। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, आप जो उसका लास्ट नेम होगा करस्पॉन्डिंग की जो भी वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे उसको देख सकता हूँ।
ठीक है। अब मैं चाहूँ तो फर्स्ट नेम भी लिख सकता हूँ। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे इसको लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे किड्स के अंदर जो की है उसको मैं चेंज करके एफ नेम कर देता हूँ, और नाउ वी कैन सी दैट अब हिज फर्स्ट नेम इज रमन। ठीक है, हमसे देख सकते हैं यहाँ पे इस फर्स्ट नेम इज रमन। सो इन दिस वे वी कैन एंटर एज मेनी एज की हम एंटर कर सकते हैं बाय यूजिंग डबल एस्ट्रिक्स साइन, और उसके अंदर हमें जो भी की को करस्पॉन्डिंग की को यूज़ करना है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हिज फर्स्ट नेम इज़ रमन एंड हिज लास्ट नेम इज़ गुप्ता। अगर मेरे को ये स्टेटमेंट टाइप करना होगा तो मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा इसके अंदर प्रिंट के अंदर, ये आपका असाइनमेंट है, आप इसको करके बताइएगा। ठीक है। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ, और यहाँ पे मैं कार एक आर्गुमेंट पास करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार का नाम मर्सिडीज़। ठीक है। तो और यहाँ पे मैं कोलन लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट कार नेम इज प्लस कार। ठीक है। और अब मैं इसमें से वैल्यू पास करता हूँ, तो एफ सबसे पहले मैं पास करता हूँ हैरियर, दूसरी पास में करता हूँ रेंज रेंज रोवर, उसके बाद मैं पास करता हूँ फोर्ड, उसके बाद मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं करता। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट है ये। तो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सॉरी, मैंने यहाँ पे कैपिटल एफ ले लिया है, कि कैपिटल एफ नहीं स्मॉल एफ होगा। इसको मैं टाटा हैरियर कर देता हूँ। रेंज रोवर की मैं स्पोर्ट्स, ठीक है, फोर्ड की हम कर देते हैं एंड डे वियर। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो वी कैन सी दैट पहले का तो टाटा हैरियर आ गया, देन रेंज रोवर स्पोर्ट्स, देन फोर्ड एंडेवियर, और लास्ट में मैंने जब कोई भी पैरामीटर्स कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या पास कर देगा, मर्सिडीज पास कर देगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मर्सिडीज नहीं लिखता हूँ तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। मैं सिर्फ सीधे कार ही यहाँ पे लिखता हूँ। तो हियर इट विल शो मी एन एरर। ठीक है, एक एरर आएगा, और वो आएगा एरर वन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो है वो मिसिंग है, मैंने यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। तो इन दिस वे वी कैन यूज द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स ऑल्सो। फाइन। अब हम बात करेंगे लिस्ट के अंदर हम किस तरीके से फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। मैंने टपल के साथ दिखा दिया आपको, डिक्शनरी के साथ दिखा दिया। अब जो मोस्ट पॉपुलरली फंक्शन यूज़ किया जाता है वो लिस्ट के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो लिस्ट जो है सबसे ज़्यादा यूज़ की जाएगी, वेदर यू आर यूजिंग मशीन लर्निंग लैब और पाइथन, कहीं पे भी आप यूज़ करेंगे तो लिस्ट जो होगी वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, बिकॉज इट हैज़ अ एडवांटेज। एक तो इसके अंदर म्यूटेबल होता है ये, हम कोई भी चीज़ को ऑल्टर कर सकते हैं, कोई भी आइटम को ऑल्टर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, सब चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। सो लिस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेट, डिक्शनरी या टपल काम में नहीं आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन वी हैव टू सेलेक्ट विच काइंड ऑफ डेटा टाइप वी हैव टू यूज़। फाइन। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि लिस्ट के अंदर हम लिस्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे नंबर्स नाम का एक आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं जब लिस्ट को मेरे को एक्सेस करना पड़ेगा तो बट ऑब्वियस है कि मुझे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, एक्स एन नम
क्योंकि नम मेरा लिस्ट का नाम है तो उसी के अंदर मुझे पास कराना है उसे। फिर मेरे को सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एक्स। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो कंप्लीट हुई। उसके बाद मेरे को यहाँ पे नम को डिक्लेयर करना पड़ेगा, नम है क्या चीज़। तो ठीक है, मैं यहाँ पे नम को डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं ले लेता हूँ 9, 8.9, 8.9, 6 एंड देन 8 प्लस 7j। ठीक है, तो मैंने सारे फ्लेवर्स ले लिए हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। मेरे को अभी कॉलिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया f, और इसके अंदर मैंने आर्गुमेंट पास कर दिया। आर्ग्यूमेंट और जो मेरा यहाँ पे मैं लिस्ट जो डिक्लेयर कर रहा हूँ वो सेम नहीं हो सकती, तो मुझे यहाँ पर वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। पहले हम एक सिंपल प्रोग्राम से देखते हैं। तो इन हियर यू कैन सी दैट आउटपुट इट इज शोइंग 9, 8.9, 6 एंड 8.7। अब अगर इसको भी मैं नम ही लिख देता हूँ और यहाँ पे भी नम ही पास कराता हूँ, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ पे पैरामीटर्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं, सेम पैरामीटर नेम भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पैरामीटर नेम भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का नेम जो हो सकता है वो सेम भी हो सकता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इसका स्कोप है वो इसी विद इन द फंक्शन है। जैसे ही मैं फंक्शन से बाहर आ गया इसका स्कोप खत्म हो गया। ये आपको पता होगा सी लैंग्वेज के अंदर भी होता है स्कोप और लाइफ। तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनका जो स्कोप होता है वो विद इन द मेन ब्लॉक ही होता है। तो इनका भी जो स्कोप है वो विद इन द डेफिनेशन ही है। जैसे वो फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, ये इंडेंटेशन का मतलब ये है कि इसका स्कोप यहाँ तक ही है। जैसे वो यहाँ से बाहर आ गया इसका स्कोप खत्म हो गया, इसलिए मैं सेम नेम ऑफ द लिस्ट जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम एक रिटर्न स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है रिटर्न भी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे f और x। जैसे मान लीजिए मुझे कोई कंप्यूटेशन करना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है या कोई डिवीजन करना है, तो मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मेरे को 5 प्लस और x करना है, तो मैं कर सकता हूँ इसको। और अब मैं उनको सिर्फ सीधे वैल्यूज़ पास करानी है। प्रिंट f, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, देन प्रिंट f5 let's suppose, and print f8। now let's see what will be the output। तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न जो स्टेटमेंट होगा, जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे x की जो भी वैल्यू यहाँ पास कर रहा हूँ वो उसके साथ ऐड होकर उसका आंसर दे देगी। तो 5 + 4 is 9, 5 + 5 is 10 and 5 + 8 is 13। so in this way we can use the रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न जो स्टेटमेंट होता है, रिटर्न वैल्यू होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट से। सो दैट्स इट स्टूडेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, आपको फंक्शंस को काम करना कैसे होता है, किस तरीके से सिंटेक्स होता है इसका, एंड हाउ वी हैव टू यूज़ इट विद द टपल, डिक्शनरी एंड विद द लिस्ट, हम लोगों ने अभी देख लिया है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट था वो फंक्शन का बता दिया है। अब आप चाहें इसको आराम से इसके असाइनमेंट्स आप करें। मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स आप लोगों को और अपलोड भी कर दूंगा। आई होप कि आप लोग अपना असाइनमेंट कर रहे होंगे। असाइनमेंट का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ स्टूडेंट्स। आप लोगों को उसको हैंड रिटन नहीं करना है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आप IPN, आप कोलैब खोलेंगे। ठीक है, कोलैब खोलने के बाद आप ये फाइल नेम देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना असाइनमेंट लिखना है। असाइनमेंट जैसे आप फर्स्ट कर रहे हैं तो असाइनमेंट फर्स्ट लिखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको असाइनमेंट 1 लिखना है। अब आप जैसे ही यहाँ पे ये लिख देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से इससे रिलेटेड जो भी फाइल पे आप जाएंगे और फाइल के बाद आप डाउनलोड IPYNB फाइल कर देंगे। तो आप IPYNB फाइल कर देंगे और असाइनमेंट 1 के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा अपना नाम विकास और अंडरस्कोर असाइनमेंट 1। ठीक है, ऐसे ही आप लिखेंगे विकास अंडरस्कोर असाइनमेंट 2, विकास अंडरस्कोर असाइनमेंट 3। तो IPYNB फाइल आपकी बन जाएगी। आप उसको डाउनलोड करेंगे और वो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है,
मैं आपको एक असाइनमेंट का लिंक बना दूंगा गूगल क्लासरूम में, आपको वो असाइनमेंट को जो लिंक होगा उस पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। और अगर मैं नहीं भी बनाता हूँ तो आप एटलीस्ट आप उसको बना के रखें, मैं आपसे वो IPYNB जो फाइल होगी वो मैं आपसे ले लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो दैट विल बी द सेम प्रोसीजर फॉर बोथ द लैब्स, दैट विल बी द प्रोसीजर फॉर बोथ द लैब्स। मशीन लर्निंग के अंदर भी हम वही करेंगे और पाइथन लैब के अंदर भी हम उसी चीज़ को करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से करना है आपको। अभी आपको हैंड रिटन कुछ भी नहीं करना, आप सीधे सीधे कोलैब खोलें, कोलैब के अंदर आप ये IPYNB फाइल क्रिएट करें अपने नाम से, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4 जो भी है वो आप बनाएं, और उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रखें, अपना एक फ़ोल्डर बना के रखें। मैं जब भी होगा, जब मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा गूगल क्लासरूम के अंदर, मैं आपको बता दूंगा, उसी हिसाब से आप उसको अपलोड कर देंगे गूगल क्लासरूम, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू क्रिएट योर, यू हैव टू डू योर कोडिंग पार्ट और द असाइनमेंट पार्ट कह सकते हैं, फाइल पार्ट जो भी आप कहते हैं इसको, आपको इस तरीके से अपनी भी फाइल बनानी है, ठीक है। सो बाय दिस आई एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और नया पार्ट पढ़ेंगे विच इज ऑल्सो नोन एज द लैम्डा, ठीक है। लैम्डा किस तरीके से यूज़ होता है, ये भी एक अच्छी चीज़ है लैम्डा। लैम्डा इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है, एक एनोनिमस फंक्शन होता है, वो किस तरीके से यूज़ होता है वो भी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर अलॉन्ग विद द अरेज, ठीक है। अरेज और लैम्डा के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो बाय दिस आई एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।